Okay, in this lecture we will discuss about the heat equation. This part also belongs to application of partial differentiable equations. Okay, now heat equation, the form of heat equation, उसका form क्या है? Form of heat equation dou u by dou t is equal to c square dou 2u upon dou x square. This is form of the heat equation. Okay, here u is dependent variable and x and t are independent variable. Okay, u is dependent and x comma t are independent variable. Okay, this is form of the heat equation. Okay, now subjected to the conditions क्या है यहाँ पे? Conditions, that is initial and boundary conditions, subject to conditions. तो देखो कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन हीट इक्वेशन, आपके पास एक रॉड है, फ्रॉम रॉड वी विल गिव द हीट. तो देखो फर्स्ट द कंडीशन फर्स्ट, द लेंथ ऑफ रॉड इज फाइनाइट. लेंथ ऑफ रॉड इज फाइनाइट. लेंथ क्या होना चाहिए रॉड की? फाइनाइट. लेंथ ऑफ रॉड इज फाइनाइट. नाउ सेकंड कंडीशन, u L comma t or u, first condition, that is initial condition, u L comma t is equal to 0 for all the values of t. Now third condition, u L comma t is equal to f of x or g of x. Suppose this is your g of x, or 0 for all the values of t. Okay, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे u L comma t is equal to g of x और 0 कौन से भी आ सकता है, और यहाँ पे L का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू L और t भी आ सकता है. डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू L और t is equal to g of x और 0 for all values of t. Okay, and fourth condition, u x comma 0 is equal to f of x for all 0 less than or equal to x less than or equal to L. This is fourth condition. Fourth condition क्या है? u x comma 0 is equal to f of x for all the values of x. अभी x कहाँ से कहाँ तक है? x starting from 0 and goes to L. x starting from 0 and goes to L. Okay, तो x from 0 to L. These are the conditions for heat equation. Okay, तो देखो this second condition, third condition and fourth condition, this three condition we have to already discuss in previous lecture, that is in wave equation. Okay, तो यहाँ पे क्या करना है? सेम कंडीशन है, तीन कंडीशन है यहाँ पे. वहाँ पे कितने कंडीशन थे? 4 conditions. Okay, heat and wave both are same, only change क्या है? In heat equation there are only 3 conditions and in wave equation there are 4 conditions. Okay, these are the condition. Now the most general solution, तो उसका solution क्या जाएगा? The most general solution, तो देखो यहाँ पे solution क्या है? Solution is u x comma t, because u is dependent and x and t are independent. Okay, तो u x comma t is equal to, उसका सोल्यूशन क्या जाएगा? देखो अभी यहाँ पे पावर ऑफ x कितना है? 2. x का पावर क्या है? 2. ओके, एंड t का पावर क्या है? 1. जब पावर ऑफ x 2 है तो हमें क्या मिलता है? साइन एंड कॉस. ओके, तो क्या जाएगा? c1 cos mx प्लस c2 sin mx e का पावर minus c square m square t. This is your most general solution of heat equation. क्या है solution? u x comma t is equal to c1 cos mx plus c2 sin mx e का पावर minus c square m square t. ओके, हाँ यहाँ पे
this x belongs to sin and cos, because the power of x is 2 and the power of t is 1. For this purpose, this goes to the power of e. Okay, now in this equation there are 3 constant कौन से है? C1 एक constant है, C2 एक constant है and m. Okay, C1, C2 and m, these are the constant. यहाँ पे जो C है ना, this C belongs to this. Okay, this C belongs to this. अभी देखो यहाँ पे C1, C2 and m, these are the constant. Okay, now we have to find values of this constant, that is C1, C2 and C3 by using these 3 conditions. जो हमने last time देखा था वही हमें same करना है. We will find the value of C1, C2 and m by using these 3 conditions. Okay, this is all about heat equation. Okay, now we will start example on that topic. Okay, example on that topic. So example first example. First example, solve dou u by dou t is equal to dou 2u upon dou x square if first u is finite, second condition, u is equal to 0 when x is equal to 0 comma pi for all values of t, and third condition, u is equal to pi x minus x square for all 0 less than or equal to x less than or is equal to L. This is your example. Okay, now look on the board. This is your given example. Solve dou u by dou t is equal to dou 2u upon dou x square. Okay, this is your heat equation, because t का power क्या है 1 and x का power क्या है 2. First identify given equation is heat or wave. Okay, so this is your heat equation. And these are the condition. First condition क्या है? U is finite, that is U is bounded. Second condition, value of U is 0. U की value क्या है? 0. कब? When x is equal to 0 and x is equal to pi. And third condition, U is equal to pi x minus x square. For all 0 less than or equal to x less than or equal to L. So this is your f of x. Okay. Now for finding answer तो क्या करना है आपको? देखो, in answer the given equation is, आंसर क्या करना है आपको? फर्स्ट राइट गिवन इक्वेशन क्या दिया है? इक्वेशन dou u by dou t is equal to dou 2u upon dou x square. करेक्ट. दिस इज योर हीट इक्वेशन. करेक्ट. यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? 1. c is 1. ओके, एंड सब्जेक्टेड टू द कंडीशन, subjected to conditions. तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है? कंडीशन फर्स्ट, u is finite, that is u is bounded or the rod is bounded. u is finite. Okay, second condition क्या है? The value of u is 0 when x is 0 and x is pi, that is वहाँ पे क्या है? सेकंड कंडीशन, u 0, t is equal to 0. एंड थर्ड कंडीशन क्या है? u pi, t is equal to 0. यहाँ पे फोकस कर दो. u is 0 when x क्या है? 0. यहाँ पे क्या किया हमने? x की वैल्यू क्या पुट की? 0. एट द टाइम u is 0. Also u is 0 कब? when x is pi. तो u is 0 when the value of x is pi. Okay,
एंड लास्ट कंडीशन क्या है, दैट इज फोर्थ कंडीशन, u इज इक्वल टू दिस, उसका मीनिंग क्या है, u x कॉमा 0, लास्ट कंडीशन जो हमने देखा था f ऑफ x की सेम कंडीशन, u x को यहाँ पे कहते हैं फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ l, तो यहाँ पे x की जगह क्या जाएगा x एंड t की जगह क्या है 0, u x कॉमा 0 इज इक्वल टू f ऑफ x एंड f ऑफ x इज पाई x माइनस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू l, ओके। तो दिस इज योर गिवन डेटा, ये आपको गिवन है, करेक्ट। नाउ we know that the most general solution is the most general solution is, तो उसका solution क्या आता है, solution of this heat equation u x t is equal to, अभी हमने देखा है c1 cos mx प्लस C2 साइन mx इंटू ई का पावर माइनस सी स्क्वेयर एम स्क्वेयर टी, बट C की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो क्या जाएगा माइनस एम स्क्वेयर टी, ओके। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो दिस इज योर मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन, ओके। दिस इज योर मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन। नाउ ऑब्जर्व हियर, in this equation 1, C1, C2 and m, these are the constant. So your target is to find the value of C1, C2 and m by using the given conditions. Okay, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, फाइनाइट, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो सेकंड कंडीशन देखो, u 0, t is equal to 0. This condition same condition for wave equation. In wave equation फर्स्ट कंडीशन सेम थी, सेकंड कंडीशन आल्सो सेम थी, तो हमें सेम ही करना है। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई कंडीशन सेकंड, फर्स्ट कंडीशन का कोई भी लेना देना नहीं यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज यू इज फाइनाइट, रॉड इज फाइनाइट, ओके। तो अप्लाई कंडीशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट, हमें क्या करना है समझ में आ गया सबको, वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, दैट इज वैल्यू ऑफ C1, C2 एंड m बाय यूजिंग दिस थ्री कंडीशन, ओके। दिस इज योर टारगेट। तो क्या करना पड़ेगा, अप्लाई कंडीशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट, अप्लाई कंडीशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या जाएगा देखो, क्या है u 0, t, यहाँ पे क्या है u x, t, अभी हमें x की जगह क्या रिप्लेस करना है 0, तो क्या जाएगा पुट x इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, क्या जाएगा u 0, t इज इक्वल टू C1 cos 0, की वैल्यू क्या आती है, वैल्यू ऑफ cos 0 दिस इज 1, प्लस C2 वैल्यू ऑफ sin 0 की वैल्यू क्या आती है, वैल्यू ऑफ sin 0 इज 0, तो C2 इंटू 0 क्या मिलेगा 0, ओके। एंड दिस एज इट इज, बिकॉज t में कोई चेंज नहीं, e का पावर माइनस एम स्क्वेयर टी, ओके। तो वो क्या मिलेगा हमें, C1 प्लस 0, तो वो क्या जाएगा C1 इज इक्वल टू C1 e का पावर माइनस एम स्क्वेयर t, करेक्ट। नाउ बट द वैल्यू ऑफ u 0, t की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0 इज इक्वल टू C1 e का पावर माइनस एम स्क्वेयर टी, ओके। नाउ फ्रॉम दिस आइदर C1 इज 0 और e का पावर माइनस एम स्क्वेयर टी 0, तो 0 क्या जाएगा यहाँ पे, तो देखो here we have to change in x replaced by 0, here we have to change in x replaced by 0, t की टर्म में कोई भी हमें चेंज नहीं किया, तो वो डेफिनेटली 0 नहीं है, तो डेफिनेटली 0 क्या जाएगा C1, तो इम्प्लाइज C1 इज इक्वल टू 0, नाउ पुट C1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes okay. Now by using condition first to equation first, we get C1 is equal to 0. Now we have to replace C1 is equal to 0 in equation first, we get equation second. तो देखो क्या मिलेगा इक्वेशन सेकंड, u x, t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू C1 क्या हो गया 0, तो वो क्या जाएगा 0 प्लस दिस, तो क्या बचेगा C2 sin mx, we get C2 sin mx into e का पावर माइनस एम स्क्वेयर टी, we get this,
ओके, नाउ अभी कंडीशन सेकंड का काम हो गया. नाउ वी हैव टू अप्लाई कंडीशन थर्ड टू इक्वेशन सेकंड. सपोज दिस इज योर इक्वेशन सेकंड. ओके, तो अप्लाई कंडीशन थर्ड टू इक्वेशन सेकंड. इन कंडीशन थर्ड में क्या दिया है, पुट x इज इक्वल टू पाई. करेक्ट, x की जगह क्या पुट करना है, पाई. तो देखो क्या जाएगा, अप्लाई कंडीशन थर्ड टू इक्वेशन सेकंड. तो क्या मिलेगा, देखो क्या करना है, x रिप्लेस बाय पाई. तो x की जगह पाई पुट कर दो, क्या जाएगा, u पाई कॉमा t इज इक्वल टू c2 साइन m पाई e का पावर माइनस m स्क्वायर t. वी गेट दिस. करेक्ट. बट वैल्यू ऑफ u पाई कॉमा t, की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ u पाई कॉमा t फ्रॉम कंडीशन थर्ड दिस इज 0. ओके, तो क्या जाएगा, दिस इज 0. तो क्या मिलेगा यहाँ पे, वी गेट वैल्यू ऑफ दिस इज 0 इज इक्वल टू c2 साइन m पाई e का पावर माइनस m स्क्वायर t. ओके, नाउ ऑब्जर्व दिस इक्वेशन, c2 साइन m पाई एंड e का पावर माइनस m स्क्वायर t. तीनों में से एक 0 है एट दैट टाइम, सबका प्रोडक्ट क्या जाएगा, 0. तो देखो अब यहाँ पे हियर वी हैव टू चेंज इन x, वी हैव टू नो चेंज इन t. तो e का पावर कभी भी 0 नहीं आएगा, बिकॉज वी हैव टू चेंज इन x नॉट इन t. अभी देखो सपोज c2 इज 0, हमने लिया c2 इज 0, पुट c2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड. अभी देखो इन इक्वेशन सेकंड इफ वी रिप्लेस c2 इज 0, तो क्या जाएगा, होल सोल्यूशन 0. तो c2 भी 0 नहीं आएगा. तो डेफिनेटली साइन m पाई इज 0. ओके, तो फ्रॉम दिस वी हैव टू राइट c2 इज नॉट इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज साइन m पाई इज इक्वल टू 0. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है इसे हम. c2 नॉट इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज साइन m पाई. तो साइन m पाई क्या मिल गया, 0. दैट इज साइन m पाई इज इक्वल टू 0. एंड वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 0. कब, थीटा इज इक्वल टू n पाई. तो फ्रॉम दिस क्या मिलेगा हमें, m पाई इज इक्वल टू n पाई. ओके, साइन थीटा इज 0, साइन का एंगल 0 आता है कब, एंगल इज इक्वल टू n पाई. तो फ्रॉम दिस फाइंड वैल्यू ऑफ m, वी गेट m इज इक्वल टू n फॉर n स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी. नाउ वी गेट वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू क्या मिल गया, n फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट 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 इंफिनिटी. नाउ सी हियर जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है. फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n वी गेट वैल्यू ऑफ m. दैट इज इफ वी रिप्लेस n इज इक्वल टू 0 वी गेट 1m. इफ वी रिप्लेस n इज इक्वल टू 1 वी गेट सेकंड m. इफ वी रिप्लेस n इज इक्वल टू 2 वी गेट थर्ड m डॉट डॉट डॉट. फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n वी गेट द वैल्यू ऑफ m. फॉर दिस पर्पज वी हैव टू राइट समेशन. नाउ पुट m इज इक्वल टू n इन इक्वेशन सेकंड. इक्वेशन सेकंड बिकम्स तो क्या जाएगा, इक्वेशन सेकंड ux कॉमा t इज इक्वल टू दिस c2 गोज टू bn, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n वी गेट वन कॉन्स्टेंट. ओके, तो क्या जाएगा, दिस इज समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, n स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. तो c2 क्या जाएगा, bn. यहाँ पे साइन n x वैल्यू ऑफ m इज n e का पावर माइनस n स्क्वायर t फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी. सपोज दिस इज योर इक्वेशन थर्ड. ओके, समेशन क्यों आ गया, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n वी गेट वैल्यू ऑफ m. नाउ बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी हैव टू राइट समेशन. ओके, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है. ओके, तो नाउ इन इक्वेशन थर्ड देयर इज ओनली वन कांस्टेंट. दैट इज कौन सा हाँ, यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है, bn. ओके, एंड आपके पास एक ही कंडीशन बाकी है, फोर्थ. नाउ वी हैव टू अप्लाई कंडीशन फोर्थ टू इक्वेशन थर्ड फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ bn. ओके, इन इक्वेशन थर्ड देयर इज ओनली वन कांस्टेंट. कौन सा कांस्टेंट है, bn.
Now your target is to find the value of Bn by using condition fourth. Okay. Now apply condition fourth to equation third. Find value of Bn. Put value of Bn in equation third. This is your target. Okay. तो क्या जाएगा? Apply condition fourth to equation 3. To equation 3. तो देखो क्या मिलेगा? I will drop this part. तो क्या जाएगा वो? कंडीशन फोर्थ क्या आपके पास? u, हाँ, आई विल राइट कंडीशन फोर्थ हियर. कंडीशन फोर्थ क्या है? u x, 0 इज इक्वल टू पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर फॉर ऑल 0 लेस देन और इज इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई. करेक्ट. दिस इज योर कंडीशन फोर्थ. करेक्ट. नाउ अप्लाई दिस कंडीशन फोर्थ टू दिस इक्वेशन. क्या मिलेगा? देखो, रिप्लेस t एज 0. रिप्लेस t एज 0. तो क्या मिलेगा यहाँ पे? पुट t इज इक्वल टू 0. क्या जाएगा? u x, 0 इज इक्वल टू summation n from 0 to infinity bn sin nx as it is, sin nx into e का पावर, t की वैल्यू क्या है? 0. तो e का पावर क्या जाएगा? 1. ओके, वी गेट दिस इक्वेशन. बट द वैल्यू ऑफ ux, 0, द वैल्यू ऑफ ux, 0 इज पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर. रिप्लेस दिस वैल्यू. दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर. तो क्या जाएगा यहाँ पे? पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 to infinity bn sin nx. Okay. Now this is Fourier sine series. Correct. This is Fourier sine series. Last lecture में देखा है Fourier sine series. Okay. By Fourier sine series, तो क्या आता है भाई? बाय यूजिंग फोरियर साइन सीरीज, दिस bn गोज टू दिस साइड. दोनों अल्टरेशन कर दो. क्या जाएगा? bn इज इक्वल टू 2 अपॉन लेंथ. लेंथ क्या है? 2 अपॉन लेंथ. लेंथ क्या है? 0 टू पाई. तो क्या जाएगा? 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू लेंथ. लेंथ क्या है? पाई. एल की वैल्यू क्या है? 0 टू पाई. ओके. 2 अपॉन लेंथ इंटीग्रेशन 0 टू लेंथ. ओके. दिस bn एंड दिस 2 रिप्लेस कर दो. ओके. यहाँ पे क्या है? समेशन. यहाँ पे क्या गया? इंटीग्रेशन. रिप्लेस दिस 2. bn यहाँ पे लिखा है तो o इसमें जाएगा पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू साइन nx इंटू डी एक्स. ओके. बाय यूजिंग फोरियर सीरीज वी गेट दिस. नाउ वी विल फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस बाय यूजिंग यूवी रूल. ओके. यूवी रूल लास्ट लेक्चर में हमने देखा था. यूवी रूल भी. यूवी रूल क्या है? तो देखो, इंटीग्रेशन u इंटू डी एक्स इज इक्वल टू u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का डबल इंटीग्रेशन प्लस u का डबल डिफरेंशिएशन v का ट्रिपल इंटीग्रेशन माइनस डॉट 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 डॉट. दिस इज इंटीग्रेशन uv. यहाँ पे दिस इज यूर u एंड दिस इज यूर v. करेक्ट. तो क्या जाएगा? बाय यूजिंग दिस रूल bn इज इक्वल टू 2 बाय पाई this u as it is, pi x minus x square as it is, इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx. साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है? माइनस कॉस n x अदर देन x. यहाँ पे क्या है? n. तो डिवाइड बाई n. ओके. दिस इज फर्स्ट स्टेप. माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर. डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x. तो क्या जाएगा? इन ब्रैकेट पाई एक्स का डिफरेंशिएशन पाई माइनस एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x. ओके. इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस साइन एज इट इज. कॉस का इंटीग्रेशन क्या आता है? साइन nx डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या है? n एंड यहाँ पे एक डिवाइड n. तो क्या जाएगा? n स्क्वेयर. ओके. दिस इज वर सेकंड स्टेप. ओके. फर्स्ट स्टेप यहाँ पे माइनस आ गया. देन प्लस
डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पाई का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा 0 एंड -2x का डेरिवेटिव -2 इन ब्रैकेट, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, बट यहाँ पे क्या है माइनस साइन, तो क्या जाएगा प्लस, दिस इज कॉस एन एक्स डिवाइड में और एक क्या जाएगा n, तो यहाँ पे क्या होगा n क्यूब, ओके, एंड 0 to पाई. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. uv इंटू डी एक्स, यू एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का डबल इंटीग्रेशन प्लस डॉट डॉट डॉट, सेम दिस इज योर u एंड दिस इज योर v, यूज सेम फार्मूला एंड सॉल्व, वी गेट दिस. ओके, नाउ पुट अपर एंड लोअर लिमिट, आई विल ड्रॉप दिस, पुट अपर एंड लोअर लिमिट, तो क्या जाएगा, अपर लिमिट क्या है पाई, एक्स रिप्लेस बाय पाई, तो क्या जाएगा बी यानी इज इक्वल टू बी एन इज इक्वल टू रिप्लेस अपर एक्स एज पाई, तो यहाँ पे क्या जाएगा एक्स एज पाई, तो यहाँ पे क्या जाएगा पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, दिस इज 0, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 0, 0 इंटू दिस क्या जाएगा 0. यहाँ पे साइन एन पाई, एक्स रिप्लेस बाय पाई, तो वो भी क्या हो जाएगा 0, एंड यहाँ पे क्या जाएगा दिस रिप्लेस बाय पाई, तो क्या बचेगा -2 cos n पाई डिवाइड बाय n क्यूब, करेक्ट. तो क्या जाएगा -2 cos n पाई डिवाइड बाय n क्यूब, दिस इज योर अपर लिमिट. अपर लिमिट समझ में आ गया सबको. कैसे देखो यहाँ पे पाई स्क्वायर माइनस एक्स रिप्लेस बाय पाई, तो क्या जाएगा पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 0, 0 इंटू दिस 0. यहाँ पे साइन n पाई 0, 0 इंटू दिस ब्रैकेट 0, एंड पुट यहाँ पे x इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos n पाई -2 मल्टीपल में है डिवाइड बाय n क्यूब, वही लिखा है. ओके, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट क्या जाएगा पुट x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या जाएगा 0, x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे साइन 0 0, एंड यहाँ पे क्या जाएगा माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस रिप्लेस x है 0 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2, cos 0 क्या आता है 1, तो क्या जाएगा 2 अपॉन n क्यूब, दिस इज 2 डिवाइड बाय n क्यूब, करेक्ट. नाउ टेक 2 डिवाइड बाय n क्यूब आउटसाइड, तो क्या बचेगा दिस इज 2 डिवाइड बाय n क्यूब आउटसाइड इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस वैल्यू ऑफ cos n पाई इज -1/n, तो cos n पाई क्या जाएगा -1 का पावर n. ओके, वी गेट दिस. नाउ bn इज इक्वल टू, अभी आपके पास bn क्या है, bn इज इक्वल टू 2 अपॉन n क्यूब इन ब्रैकेट 1 माइनस -1 का पावर n, करेक्ट. Now suppose n is a even number, I will write this in two part. Suppose n is even, तो क्या जाएगा this is +1, n is even माइनस का पावर क्या जाएगा +1, ओके, तो 1 - 1 क्या जाएगा 0, तो होल 0 आ जाएगा, कब इज इक्वल टू 0 इफ n is even, ओके, n is even, एंड इफ n is odd, तो -1 का पावर ऑड, वो क्या जाएगा -1, ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 + 1 क्या जाएगा 2, एंड 2 × 2 4, दिस इज 4n क्यूब, कब n is odd, ओके. तो फॉर फाइंडिंग नॉन जीरो सोल्यूशन वी हैव टू रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ bn इज नॉन जीरो. ये जीरो लिखने की जरूरी है क्या, नहीं, वी हैव टू राइट वैल्यू ऑफ bn एज 4n क्यूब. ओके, नाउ पुट वैल्यू ऑफ bn इन इक्वेशन थर्ड. नाउ इक्वेशन थर्ड बिकम्स, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी मैंने इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन आई विल राइट हियर, इक्वेशन थर्ड बिकम्स नाउ रिप्लेस वैल्यू ऑफ bn इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या जाएगा ux, t इज इक्वल टू summation n from 0 to infinity, the value of bn is 4n cube sin nx e का power n square t, and this is solution, and this solution is possible only if कब if n is odd, okay. So now this is your required solution of heat equation, and this is your final answer, that is value of ux, t. Okay, now this is all about heat equation. Okay.